Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, working with MS Paint. In this chapter, you will learn about features of MS Paint, Start MS Paint, Shapes tool, Selection tool, copying an object, moving an object, crop an image, flipping or rotating an image, resize or skew the picture, zooming the picture, full screen view, color palette, edit colors, set a drawing as a desktop background, saving the drawing, saving changes in existing file, opening an existing file, exiting from Paint program. MS Paint is an application software developed by Microsoft. This software allows us to draw pictures in color or paint it by using various tools. We have learned the basics of MS Paint in previous classes. Let us learn more about MS Paint in this chapter. देखिए MS Paint आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है और इस सॉफ्टवेयर में हम पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग वेरियस टूल्स. तो हम प्रीवियस क्लासेस में भी MS Paint के बारे में पढ़ के आए थे, उसके कुछ टूल्स के बारे में, और अब हम MS Paint के बारे में और जानेंगे. Right? So let's start. Features of MS Paint. MS Paint is used to create drawings, edit and print them. We can draw different shapes with shape tools. We can create pictures using different brushes. We can copy an image from another application and paste it in Paint to edit it. We can rotate, resize and flip the picture. अच्छा, MS Paint के फीचर्स क्या है? सबसे पहले आप ड्राइंग को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं. ओके, डिफरेंट शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं हम विद शेप टूल से. हम पिक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट ब्रशेस का यूज़ करते हुए. ओके, और अब किसी भी इमेज को हम कॉपी कर सकते हैं फ्रॉम अनदर एप्लीकेशन और उसे पेंट पे हम पेस्ट कर सकते हैं. ओके, हम रोटेट कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं और यहाँ तक कि पिक्चर को फ्लिप भी कर सकते हैं. ओके, Start MS Paint. To work in MS Paint, we need to open the MS Paint application. To start MS Paint, the steps are as follows. Go to Start. From the list, select all apps, then select Windows, Accessories, Paint. A Paint window appears on the screen with a blank white page. अब MS Paint को पे वर्क करने के लिए उसको स्टार्ट करना पड़ेगा. कैसे करेंगे? या प्रीवियस क्लासेस पे भी पढ़ के आए हैं, राइट? चलिए फिर से देखते हैं. स्टार्ट पे जाएंगे, देन ऑल एप्स, फिर विंडोज़ एक्सेसरीज को सिलेक्ट किया, देन पेंट, और देखिए पेंट विंडो अपीयर होगी स्क्रीन पे विद अ ब्लैंक वाइट पेज. ओके, फैक्ट फाइल. कलर 1 रिप्रेजेंट द फोरग्राउंड कलर, कलर 2 रिप्रेजेंट्स द बैकग्राउंड कलर. या प्रीवियस क्लास में भी पढ़ के आएंगे कि जो कलर 1 है वो फोरग्राउंड कलर को रिप्रेजेंट करता है, जबकि कलर 2 बैकग्राउंड कलर को रिप्रेजेंट करता है. ओके, शेप्स टूल. देयर आर वेरियस types of shapes available in Paint which can be used to create various types of drawings. Number 1, go to Home tab. Number 2, in Shapes group, click on drop down arrow of Shapes command. Number 3, you will see various types of shapes like oval, rectangle, diamond, star, triangle, etc. Number 4, select any shape of your choice. Click on color 1 to choose color for the outline. Number 6, click on color 2 to choose color for the filling. Number 7, to select the line size, click on the drop down arrow of size option and select the required size. Number 8, now move the mouse pointer to the drawing area. Number 9, click and drag the mouse to draw the shape. चलिए अब शेप टूल्स का क्या यूज़ है? देखिए बहुत सारे आपके पास शेप्स अवेलेबल है. ओके, तो चलिए देखते हैं किस तरह से मैंने यूज़ कर सकते हैं. सबसे पहले आप जाएंगे होम टैब पे, शेप्स ग्रुप में. देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, ये जो ड्रॉप डाउन एरो है शेप्स कमांड का. ओके, बहुत सारी आपको शेप्स नज़र आ रही हैं. कोई भी शेप हम अपनी चॉइस का इसमें से सिलेक्ट करेंगे. ओके, फिर हम क्लिक करेंगे कलर 1 पे जो कि आउटलाइन होगी. ओके, फिर हम कलर 2 पे जाएंगे, कलर चूज़ करेंगे फिलिंग के लिए. फिर हम लाइन साइज को सिलेक्ट करेंगे. ओके, और फिर हम क्लिक करेंगे ये जो ड्रॉप डाउन एरो है साइज ऑप्शन का. ओके, और साइज को सिलेक्ट किया. फिर माउस पॉइंटर को हम ड्राइंग एरिया पे लेके आएंगे, क्लिक और ड्रैग करेंगे और ये आपका शेप ड्रॉ हो गया. ओके, फैक्ट फाइल. इफ यू वांट टू डिलीट अ पिक्चर, सिलेक्ट इट यूजिंग एनी सिलेक्शन टूल एंड प्रेस डिलीट बटन फ्रॉम द कीबोर्ड. अगर आप चाहते हैं कोई भी पिक्चर को डिलीट करना, आप इसको सिलेक्ट करेंगे किसी भी सिलेक्शन टूल से, फिर डिलीट बटन को प्रेस करेंगे. ओके, कीबोर्ड से तो डिलीट हो जाएगा.
फैक्ट फाइल टू डीसेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, क्लिक ऑन द ब्लैंक ड्राइंग एरिया। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को डीसेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप ब्लैंक ड्राइंग एरिया पे क्लिक कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल. Selection tool helps us to select a picture or part of it. This can be used in situation when we want to do some editing in a picture. So we can select it and make changes in it. Number 1, go to Home tab. Number 2, in Images group, click on the drop down arrow of Select command. Number 3, a list comes on the screen that shows you 2 types of selection shapes. A, rectangular selection. B, free form selection. 4. Some selection options are as follows. A, select all. This option is used to select the entire picture. B, invert selection. This option helps to reverse the current selection. C, delete. This option is used to delete the selection from the picture. D, transparent selection. This option is used to make the background color of the selection transparent or opaque. Let us learn about the rectangular selection tool and freeform selection tool in detail. अच्छा देखिए, अब सिलेक्शन टूल हमको हेल्प करते हैं कि हम कोई भी पिक्चर को सिलेक्ट करें या उसका पार्ट को सिलेक्ट करें। ओके, तो देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे होम टैब पे, इमेजेस ग्रुप पे हम करेंगे क्लिक, ये जो ड्रॉप डाउन एरो है सिलेक्ट कमांड का। ओके, फिर एक लिस्ट आपकी अपीयर हो रही है, इसमें से देखिए रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और फ्री फॉर्म सिलेक्शन है, राइट। इसके बाद कुछ सिलेक्शन ऑप्शंस आपके हैं जैसे कि सिलेक्ट ऑल, जिसमें से कि पूरे पिक्चर सिलेक्ट हो जाएगी। फिर आपके पास है इन्वर्ट सिलेक्शन, इससे क्या होगा कि करंट सिलेक्शन को रिवर्स कर देगा। देन आपके पास है डिलीट, ये क्या करेगा, जो सिलेक्शन है उसको डिलीट करेगा पिक्चर में से। ओके, एंड आपके पास है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन लास्ट में, ये क्या करेगा, ये बैकग्राउंड कलर जो होगा सिलेक्शन का उसको ट्रांसपेरेंट या फिर ओपेक कर देगा। ओके, तो चलिए अब हम डिटेल में जानते हैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल और फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल को। Rectangular selection tool. With the help of this tool, we can select a picture or a part of it in a rectangular form. Click on the rectangular selection tool from the select command. To select the picture, move the mouse pointer to the picture and click on the outside area of the picture. Hold the mouse and drag the mouse to complete your selection. Then release the mouse button. A rectangular border comes around the picture. It means your picture has been selected. देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल पे सिलेक्ट कमांड से। ओके, अच्छा अब पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, माउस पॉइंटर को मूव करेंगे पिक्चर पे और पिक्चर की आउटसाइड पे हम क्लिक कर देंगे। ओके, अब माउस को होल्ड करेंगे, माउस को ड्रैग करेंगे जिससे कि हमारा सिलेक्शन कंप्लीट हो जाए। अब माउस बटन को रिलीज करेंगे। अब देखिए एक रेक्टेंगुलर बॉर्डर आ गई है पिक्चर के अराउंड, इसका मतलब हमारी पिक्चर जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है, राइट। फ्री फॉर्म सिलेक्शन. Free form selection is like a free hand selection in which you select a picture or a part of it in an irregular shape. Click on free form selection tool from the select command. To select the picture, take the mouse pointer outside the picture. Hold the mouse button and drag the mouse and create a boundary around the picture. You will see solid line follows you as you move the mouse. Release the mouse button after completing the selection. अब फ्री फॉर्म सिलेक्शन क्या है, मतलब ये फ्री हैंड सिलेक्शन है. जैसे कि आप कोई भी पिक्चर को सिलेक्ट करना चाहते हैं या पार्ट उसका सिलेक्ट करना चाहते हैं इर्रेगुलर शेप में. ओके, जैसे कि आप क्लिक करेंगे फ्री फॉर्म सिलेक्शन को आपके सिलेक्ट ऑप्शन से. पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए माउस पॉइंटर को पिक्चर के आउटसाइड ले जाएंगे, माउस बटन को होल्ड करेंगे, माउस को ड्रैग करेंगे और एक बाउंड्री क्रिएट करेंगे. अब देखिए सॉलिड लाइन आपकी, जैसे जैसे आप माउस को मूव करा रहे हैं सॉलिड लाइन आपकी फॉलो कर रही है. माउस बटन को जैसे ही रिलीज करेंगे, जब जैसे ही आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा. ओके, कॉपिंग एन ऑब्जेक्ट. Copying an object means to create the duplicate of the object. The object will appear both at the source and destination position. Number 1, select a picture using selection tool. Number 2, go to Home tab. Number 3, in clipboard group, select the copy command. Number 4, now click the paste command in clipboard group. Number 5, you will see a duplicate copy of the picture at the top left corner of the window. Now move the mouse pointer on the picture and click and drag the copy to any location. कॉपी करने का मतलब क्या है, आपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़े होंगे कि हम एक ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट क्रिएट करते हैं. ओके, और वो दोनों जगह पे नज़र आएगा, मतलब सोर्स पे भी नज़र आएगा और डेस्टिनेशन पोजीशन पे. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्शन टूल की हेल्प से हम पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे. देन होम टैब पे जाएंगे और यहाँ पे जो क्लिपबोर्ड बोर्ड है कॉपी कमांड को सिलेक्ट किया, फिर करेंगे पेस्ट कमांड पे क्लिक
ओके, अब देखिए जो डुप्लीकेट कॉपी है पिक्चर की, ये विंडो के लेफ्ट कॉर्नर पे नज़र आ रही है। ओके, फिर माउस पॉइंटर को मूव करेंगे और क्लिक और ड्रैग करेंगे कॉपी को किसी भी लोकेशन पे। ओके, क्विक एक्शन, टू कॉपी द इमेज प्रेस Ctrl+C, टू पेस्ट द इमेज प्रेस Ctrl+V। मूविंग एन ऑब्जेक्ट, moving an object means to place the object from one place to another. It will appear only at the destination position but not at the source position. Number 1, select an object using any selection tool. Go to Home tab. In clipboard group, select the cut command. You will notice that the object has disappeared from the drawing area. Now click on paste button from the clipboard group of Home tab. The object will appear at the top left corner of the window. Place the mouse pointer on the object and drag it to the desired location. देखिए ऑब्जेक्ट को मूव कराना एक जगह से दूसरी जगह, तो देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपको डेस्टिनेशन पोजीशन पे ही मिलेगा, सोर्स पोजीशन पे नहीं। ओके, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, होम टैब पे जाएंगे, कट कमांड को सिलेक्ट करेंगे और देखिए ऑब्जेक्ट डिसअपीयर हो गया ड्राइंग एरिया से। ओके, अब आप पेस्ट बटन पे क्लिक करेंगे और ऑब्जेक्ट जो है अब आपके विंडो के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में अपीयर हो गया। ओके, फिर आप माउस पॉइंटर को प्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट पे और इसको डिजायर्ड लोकेशन पे ट्रैक करेंगे। क्विक एक्शन, टू कट द ऑब्जेक्ट प्रेस Ctrl+X, टू पीस ऑब्जेक्ट प्रेस Ctrl+V। ये शॉर्टकट की आपने पहले भी पढ़ी थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+X और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। क्रॉप एन इमेज, using this feature of Paint, we can crop the image and remove the unwanted portion of the image from the drawing. Select the portion of an image which you want to keep. Now go to Home tab. In Image Group, click on Crop command. You will see that the selected image will retain and rest of the drawing is removed. Okay, देखिए आप कोई unwanted portion होता है ना किसी image का, तो उसे हम crop करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। सबसे पहले image का वो portion select करेंगे जिसे हम रखना चाहते हैं। Okay, remember that which we want to keep. Okay, अब देखिए होम टैब पे गए, फिर इमेज ग्रुप में हम क्रॉप कमांड को क्लिक करेंगे। अब देखिए जो सिलेक्टेड इमेज है वो रिटेन रहेगी, जबकि जो बाकी की जो ड्राइंग है वो रिमूव हो गई। राइट, एक्टिविटी टाइम, क्रिएट द फॉलोइंग पिक्चर इन पेंट बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। ओपन अ न्यू पेज टू क्रिएट अ ड्राइंग। Select a rectangular tool to draw the cupboard. With the help of line tool, draw doors of cupboard and glass in it. Use line tool, draw the shelves and cupboard. With the help of oval, right triangle, brush, a rounded rectangle, rectangle tool, line and curve tool, draw the clothes and things in cupboard. Select the color from the colors palette and select fill with color tool to fill the object with colors as shown in the figure. Save the file with file name closet. Close the file. देखिए आपको क्या करना है, ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है कबर्ड की, ये आपको क्रिएट करनी है पेंट में। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, न्यू पेज ओपन करेंगे, रेक्टेंगुलर टूल को सिलेक्ट करेंगे कबर्ड को ड्रॉ करने के लिए। ओके, बिकॉज इट इज़ इन रेक्टेंगुलर शेप। लाइन टूल की हेल्प से आप डोर्स बनाएंगे, कबर्ड्स के ग्लास बनाएंगे। ओके, फिर लाइन टूल का यूज़ करते हुए आप शेल्व्स बनाएंगे। ओके, और उसके बाद ओवल, राइट ट्रायंगल, ब्रश, राउंडेड रेक्टेंगल, रेक्टेंगल टूल, लाइन और कर्व टूल की हेल्प से आप क्लोथ्स ड्रॉ करेंगे और जो भी चीज़ें आपकी कबर्ड में है। राइट, फिर कलर को आप कलर पैलेट से सिलेक्ट करेंगे फिल विद कलर को ऑब्जेक्ट में कलर फिल करने के लिए, और आप फाइल का नाम रखेंगे क्लोजेट और फिर फाइल को क्लोज करेंगे। ओके, सो यू विल डू दिस एक्टिविटी। Flipping or rotating an image. Flip or rotate feature of paint is used to flip the image horizontally or vertically, or to rotate it to certain angle like 90° left, 90° right or 180°. Select an image using any selection tool. Now go to Home tab. In Image Group, click on Flip or Rotate command. A drop-down list opens. Select any rotate or flip option and observe the change in your selected image. Okay? अब देखिए आप क्या करना चाहते हैं, किसी भी इमेज को रोटेट या फ्लिप करना चाहते हैं हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, या फिर उसको किसी सर्टेन एंगल पे रोटेट करना चाहते हैं, लाइक एंगल 90° लेफ्ट, 90° राइट या फिर 180° पे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इमेज को सिलेक्ट करेंगे सिलेक्शन टूल की हेल्प से, होम टैब पे जाएंगे, फिर आप यहाँ पे जो इमेज ग्रुप में फ्लिप और रोटेट कमांड है ना, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए एक लिस्ट आपकी ओपन हो गई है, तो आप कोई भी
यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं रोटेट या फ्लिप ऑप्शन, और देखिए फिर आपके इमेज में चेंजेस आ जाएंगे। ओके, देखिए अगर आपने वर्टिकली फ्लिप किया है तो ये इस तरह से हो जाएगा 180 डिग्री पे इस तरह से, और रोटेट ये लेफ्ट है 90 डिग्री लेफ्ट अगर आपने इसको रोटेट किया है तो। Resize and skew the picture. The size of the picture can be changed or it can be tilted by using resize and skew command. Select the picture using any selection tool. Go to Home tab. In image group, select resize and skew command. A resize and skew dialog box appears on the screen. Select percentage or pixel ratio button. Give the value in horizontal and vertical text boxes. To skew an image, give the value in corresponding text boxes. Notice the changes in the picture. अब आपको पिक्चर को रीसाइज और स्क्यू करना है। ओके, कैसे करेंगे? सबसे पहले पिक्चर को सिलेक्ट करना है ऑफ कोर्स यूजिंग सिलेक्शन टूल। अब हम जाएंगे होम टैब पे, फिर हम सिलेक्ट करेंगे रीसाइज और स्क्यू कमांड। ओके, अब ये रीसाइज और स्क्यू डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। फिर हम परसेंटेज और पिक्सल रेशियो बटन को सिलेक्ट करेंगे। फिर हम इस ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टेक्स्ट बॉक्सेस उसमें वैल्यू डालेंगे। ओके, अब इमेज को स्क्यू करने के लिए ये जो आपके बॉक्सेस इसमें वैल्यू डालेंगे, और जैसी वैल्यू डालेंगे देखिए पिक्चर में क्या चेंजेस होते हैं। राइट, zooming the picture. Zoom in or zoom out means to increase or decrease the view size of the picture. Open a new drawing sheet. Create an image as shown in the picture. Go to View tab. In Zoom group, select Zoom in option. It will increase the view size. Select Zoom out. It will decrease the view size. Okay. अब आपको क्या करना है? जूम करना है पिक्चर को। जूम इन या जूम आउट का मतलब होता है कि जूम इन का मतलब है साइज को इंक्रीज करना, और जूम आउट का मतलब होता है डिक्रीज करना। ओके, देखिए एक न्यू ड्राइंग शीट को ओपन करेंगे, फिर आप एक इमेज को क्रिएट करेंगे जैसे आपको पिक्चर में नजर आई है, फिर हम अपनी मर्जी से भी कोई क्रिएट कर सकते हैं। ओके, व्यू टैब पे जाएंगे और जूम ग्रुप में जूम इन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए व्यू साइज बढ़ गया। जैसे हम जूम आउट को सिलेक्ट करते हैं व्यू साइज इसका डिक्रीज हो जाएगा। ओके, फुल स्क्रीन व्यू। To view the picture in full screen, a full screen command is used. It will display only picture in full screen mode. The rest of the contents of the window will not be displayed. Number 1, go to View tab. Number 2, in display group, select full screen option. Number 3, your picture will be displayed in full screen mode. देखिए अगर आप चाहते हैं पिक्चर को फुल स्क्रीन में व्यू करना तो फुल स्क्रीन कमांड का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले आप व्यू टैब पे जाएंगे और डिस्प्ले ग्रुप में आप फुल स्क्रीन ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे, तो अब आपका जो पिक्चर है वो डिस्प्ले हो जाएगी फुल स्क्रीन मोड में। ओके, फैक्ट फाइल। टू कम आउट ऑफ फुल स्क्रीन मोड प्रेस एस्केप की फ्रॉम द कीबोर्ड। अगर आप फुल स्क्रीन मोड से बाहर आना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे एस्केप की को। Color palette. A color palette contains a set of colors which are useful in creating colorful drawings. You can select any color from the color palette as foreground color or background color. Click on color 1 and select the color from the color palette. It will be used as foreground color which is used for outlines. Number 2, click on color 2 and select the color from the color palette. It will be used as background color which is used to fill the objects. Color palette में आपके set of colors हैं। ओके, बहुत सारे, आप कोई भी कलर अपनी चॉइस का हम इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम कलर 1 पे क्लिक करते हैं तो आपका कलर सिलेक्ट हो जाता है कलर पैलेट से, और ये आपका फोरग्राउंड कलर होता है जो कि आपके आउटलाइंस के लिए यूज़ होता है। एंड कलर 2 पे अगर क्लिक करते हैं तो उसके बाद कलर सिलेक्ट करेंगे कलर पैलेट से, तो ये बैकग्राउंड कलर आपका हो जाएगा जिसको ऑब्जेक्ट को फिल करने के लिए यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सिलेक्ट रेड कलर एज कलर 1, सिलेक्ट ब्लू कलर एज कलर 2. Now select a shape, say a triangle, from the shapes command. Select any line size from size command. Now draw the triangle on the drawing sheet. You will notice that a triangle is drawn with red outline. To fill the triangle, press right mouse button within the triangle. आपको क्या करना है? देखिए सबसे पहले आपने रेड कलर सिलेक्ट करना है एज कलर 1 और ब्लू कलर एज कलर 2 सिलेक्ट किया। ओके, अब आप एक शेप को सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने ट्राइंगल सिलेक्ट कर लिया शेप्स कमांड से। ओके, कोई भी लाइन साइज हम सिलेक्ट करेंगे साइज कमांड से, ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे ड्राइंग शीट पे। अब देखिए ट्राइंगल आपका ड्रॉ हो गया है, रेड कलर की इसकी आउटलाइन है, और ट्राइंगल को फिल करने के लिए हम राइट माउस बटन को प्रेस करेंगे ट्राइंगल के अंदर। ओके, edit colors. We can select more colors other than present in color palette. For this we need to select the edit color command.
Go to Home tab. In Colors group, select Edit Colors command and Edit Colors dialog box appears on screen. Select the color from Basic Colors section. Move the slider on right side to edit the selected color. When you get the required color, click on Add to Custom Colors button. The selected color will be added to Custom Color section. Click OK button. देखिए आपके पास कलर पैलेट में जितने भी कलर्स हैं उसके अलावा भी और कलर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं. उसके लिए आप क्या करेंगे, एडिट कलर कमांड को सिलेक्ट करेंगे. ओके, तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, होम टैब पे जाएंगे, फिर एडिट कलर कमांड को सिलेक्ट किया, ये एडिट कलर डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया. ओके, अब आप कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं बेसिक कलर ऑप्शन सेक्शन में से. फिर आप स्लाइडर को मूव करेंगे ना राइट साइड में सिलेक्टेड कलर को एडिट करने के लिए, और जैसे ही आपको रिक्वायर्ड कलर मिल जाता है आप क्लिक करेंगे ऐड टू कस्टम कलर्स बटन पे. ओके, अब ये जो कलर है जिसको हमने सेलेक्ट किया ये आपका ऐड हो जाएगा कस्टम कलर सेक्शन में. देन वी विल क्लिक ओके बटन. Set a drawing as a desktop background. A drawing created by you can be set as a desktop background. This can be done by following given steps. Number 1, go to File menu. Number 2, hover the mouse on the arrow next to Set as Desktop Background option. Number 3, a list comes on the screen with some options. A, fill. It fill up the whole desktop screen with the drawing. B, tile. It repeats the drawing and fill up the whole desktop screen. C, center. It makes the drawing appear to the center of the screen. 4, select any of the option and drawing will be set as background. अब आप चाहते हैं कि आपने जो ड्राइंग बनाई है ना हम उसे एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड उसको सेट करें. तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप जाएंगे फाइल मेन्यू पे, देन यू विल होवर द माउस ऑन द एरो नेक्स्ट टू सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन. तो देखिए यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे. फिल, इसका मतलब है ये पूरे डेस्कटॉप स्क्रीन को फिल कर देगा ड्राइंग के साथ. टाइल में क्या होगा, ये ड्राइंग को रिपीट करेगा और फिर फिल अप कर देगा होल डेस्कटॉप स्क्रीन को. सेंटर में ये क्या करेगा, जो ड्राइंग है ये आपके स्क्रीन के सेंटर पर आ जाएंगे. तो इन तीनों ऑप्शन में से हम कोई भी चूज कर सकते हैं. ओके, और फिर हमारी ड्राइंग सेट हो जाएगी एज बैकग्राउंड. Saving a drawing. It is very important to save our work on the computer. To save a newly created file, the steps are as follows. Number 1, click on File menu. Number 2, click on Save As option. Number 3, a Save As dialog box opens. Type the file name in file name text box. Number 5, click on Save button. The file will get saved. देखिए आपको हर बार ये बोला जाता है कि जब भी आप कंप्यूटर पे काम करें अपने वर्क को सेव करना बहुत ज़रूरी है. ओके, तो कैसे हम करेंगे, देखिए सबसे पहले आप फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया. अब आप इस पे फाइल नेम टाइप करेंगे, ओके कोई भी, फिर सेव बटन पे क्लिक करेंगे और हमारी फाइल सेव हो जाएगी. Saving the changes in existing file. If you do some changes in already saved file, you need to save the changes you have done it. To save the changes in existing file, the steps are as follows. Number 1, click on File menu. A menu list opens. Number 3, click on Save option. Number 4, the changes will get saved in the same file. आप चाहते हैं existing file में कुछ changes आपने किए हैं उसको सेव करना, तो कैसे करेंगे, फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, मेन्यू लिस्ट ओपन होगी, फिर आप सेव ऑप्शन पे जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे और जो चेंजेस हैं वो आपके सेव हो जाएंगे सेम फाइल. Open an existing file. To open an existing file, the steps are as follows. Number 1, click on File menu. Number 2, from the list, select Open option. Number 3, an open dialog box opens. Number 4, type or select the file. Number 5, click Open button. Your file opens up on the screen. Okay. अब आप चाहते हैं आपकी existing file को open करना, आप क्या करेंगे, फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, ओपन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ये ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, अपनी फाइल नेम को टाइप करेंगे या सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर ओपन बटन पे क्लिक करेंगे और आपकी फाइल ओपन हो जाएगी स्क्रीन पे. एग्जिट द पेंट प्रोग्राम. टू एग्जिट द पेंट प्रोग्राम द स्टेप्स आर एज फॉलोज. गो टू फाइल मेन्यू. नंबर 2, क्लिक ऑन एग्जिट ऑप्शन एंड नंबर 3, द पेंट प्रोग्राम विल बी क्लोज्ड. अब आपने पेंट प्रोग्राम को एग्जिट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, फाइल मेन्यू पे जाएंगे, एग्जिट ऑप्शन और आपका पेंट प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा. Summary points. Microsoft Paint is an application software. It was developed by Microsoft which allows you to draw your imagination and color or paint it by using various tools. Selection tool helps in case when we want to select a picture or part of it.
Rectangular selection tool is used to select a picture or a part of it in a rectangular form. Free form selection is like a freehand selection. Copying an object means to create the duplicate of an object. Moving an object means to place the object from one place to another. Crop option is used to remove the unwanted portion of the image from the drawing. Flip or rotate feature of Paint allows you to flip the image horizontally or vertically, or to rotate it to a certain angle like 90-degree left, 90-degree right, or 180-degree. Zoom in and zoom out options help to have increased or decreased view of the picture. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, राइट? बिकॉज दिस इज द इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसमें हमने ड्राइंग की, पेंट किया, राइट? और अब एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.